Today's topic is depreciation. Okay. So आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स so you should write a question on your notebook. Just I am going to write on the board. Okay. Question is X Limited bought a machinery for rupees 98,000 on April 1st 2000 and rupees 2000 was paid for its installation. Okay. Expected life time of machine is 10 years and its scrap value is rupees 20,000. Prepare machinery account for the first 3 years, assuming that books are closed on 31st March every year. So students, in this topic today we will study about how to prepare asset account with your machinery account, because we have purchased machine, right? So how many years? So it is saying that first 3 years and books are closed on 31st March every year. Okay. Means your beginning year is April 1st and closing 31st March. So first of all you should take note on your notebook, or you can take the screenshot. After that I'll be solving over here. Okay, students, you all have taken everything? Yes, sir. Okay, beta, very good. Yes, sir. So now draw the format for the machinery account. Account means ledger. Okay. So continuously 3 years ledger we have to prepare on a single page.
ठीक है, you all are knowing the format of the ledger. First column would be for date, second column will be for particulars, then J for the credit side, na? So just draw the format in the full page, okay, and you also should take a note of it. Okay, so now I'm going to erase this. So here you will write name of the account, machinery account. This is what ledger, and this is the format. Okay, and now this column will be for the amount, this column will be for JF, and this one will be for date and particular. Same column will be repeated here. Date, particular amount, and GL. Okay. So this is for rupees, this is for JF, and you know this is what credit side, and this is what particular, and repeat. So here we will prepare directly ledger. We are not supposed to pass the journal entry because in the question itself it is saying prepare machinery account for the first 3 years. Okay, students. So let me start. Suppose that कि सबसे पहले आप क्या करते हो? You have purchased a machine for rupees 98,000 and immediately you have incurred rupees 2,000 for its installation. The total acquiring cost of the machine would be rupees 1 lakh, right? So हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 lakh. तो year क्या है? In 2008 April 1st. So you will write to bank or cash, whatever. So we have written bank, and generally it is advisable to write bank because when we purchase assets, we make payment through check. Now, so to bank account, and total amount would be 1 lakh. Okay, how? So 98,000 is the purchase price plus 2,000 is installation cost. The total cost of acquiring that machine would be rupees 1 lakh, right? So 1 lakh रुपए हो गए. अब आपको करना क्या है? You will use the same machine throughout the year. So after using the whole machine at the end of the counting period, you need to charge depreciation. Okay, so the what will be the date of closing? So 2009 March 31st, because आपका जो डेट है वो अप्रैल टू मार्च है. सो अप्रैल 1st से मार्च 31st हो रहा है ना? नहीं, एक साल वो ऑटोमेटिक अलग हो जाता है जब डबल अंडरलाइन. So beta, just you can see, you will get your answer. Okay, so first year on 1st April we have purchased this one for rupees 1 lakh, and at the end of the year we need to depreciate it because we are using it continuously. So there should be some wear and tear value. Okay, how much? In the question it is being said, just I am showing here you all the working note. You will do the working note on separate page.
because I don't have the separate place, so I am writing over here. Okay, so see how will you calculate annual depreciation? Because from April to March 31st, total 12 months is coming. So first of all, you need to calculate the annual depreciation. How to calculate? Original cost minus scrap value divided by lifetime. है ना? So original cost is 1 lakh. Now scrap value is 20,000 and lifetime is 10 year, right? So per year depreciation would be how much? 8,000. 1 lakh minus 20,000 will be 80,000 and 80,000 will be divided by its estimated lifetime. कल हमने पढ़ाया था इसको, तो लाइफ टाइम से डिवाइड करेंगे 10 से, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 8,000. सो एक साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 8,000 होगा. सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000, राइट. सो देखो 8,000 रुपए का हमारा डेप्रिसिएट हो गया मशीन. अब इसके बाद बैलेंस कितना बचा ईयर के लास्ट में? सो वी नीड टू फाइंड द बैलेंस ऑन द सेम डे बाय बैलेंस सीडी. सो बैलेंस सीडी के लिए पहले हमें टोटल करना होता है बोथ साइड. यहाँ डबल अंडरलाइन जैसे ही किया, एक साल खत्म हो गया, ठीक है, ये 1 ईयर कंप्लीट होता है. तो कैसे बैलेंस करेंगे? सी, तो दिस साइड इज मोर डेबिट 1 लाख आप लिखोगे, ये आपका डेबिट साइड है ना, और यही आप यहाँ भी लिखोगे क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने में पता चल रहा है कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है ना. सो बैलेंस निकालो 1 लाख माइनस 8,000 तो कितना आ जाएगा? 92,000. इट मीन्स कि एक साल पूरा 1 ईयर पूरा मशीन को यूज करने के बाद मशीन का जो बैलेंसिंग फिगर बचा आफ्टर ईयर एंड ईयर 2,000. बट वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्योंकि यहाँ एस्टिमेटेड लाइफ टाइम दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू दिया. तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से ही चार्ज करते हैं. सो 1 ईयर कंप्लीट. अब इसके बाद सेकेंड ईयर. सो हियर यू ऑल हैव नोटेड स्टूडेंट्स. नमन वर्मा, अदिति. यस सर. क्लियर है बेटा ये सारा फर्स्ट ईयर का? हाँ सर. यस सर, क्लियर है. ओके. नो. So I am going to erase the working because the working would be same for every year. As per original cost method, every year we need to charge the same amount of depreciation. Yesterday I had taught you all before. So now this is what the balance CD on 31st March 2019. So next year will be April 1st 2009. Year name would be same, only date would be changed. ना क्योंकि मार्च आता है, अप्रैल आता है और आपका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है. क्वेश्चन में लिखा भी है. सो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी. ठीक है, तो हाउ मच बैलेंस बीडी इज देयर? 92,000. ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा सभी को? चेयर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें. So okay, so to balance we need 92,000. So this year again we will use the same assets. Okay, so after 1 year again we have to charge the depreciation, and depreciation would be the same for the full year. If half year would be, so it will be 4,000, but full year will be 8,000. So 2010 and March 31st. अब चेक कर लो, यहाँ मार्च 2009 था तो नेक्स्ट ईयर मार्च 2010 होगा. यहाँ बिगनिंग अप्रैल 2008 था तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2009 होगा. ठीक है, मतलब इसका आ गया. सो अब इसके बाद हम कर लिखेंगे टू बाय डेप्रिसिएशन. सो हाउ मच? 8,000 and now balance
balance CD. How much it would be balance? So, likewise, previous year we had to balance. So total is 92,000, which is more. Always 92,000 now minus 8,000. So how much would be 84,000? Yes, 84,000 sir. would be the. This means it is showing you that after charging depreciation continuously 2 years, the balance of machine is 84,000. Now again for the third year, as per the question, 2010 April 1st to balance BD. Opening balance always remains BD. So 80,000, 84,000. right? Now the closing 2011 31st March. Okay. Again we will charge the depreciation. क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो डेप्रिसिएशन हमारा सेम होगा एक साल का 8,000 रुपए. अब बैलेंस फाइंड करेंगे. 76,000. बैलेंस सीडी. ये डबल अंडरलाइन करने का मतलब होता है वो ये कंप्लीट हो गया. ये नीचे जो दो लाइन खींच देते हैं. सो 84,000 और 84,000. So 76,000 will be added 6 by balance CD. बैलेंस. आप उसको वहीं छोड़ दो चाहे अगली बार ट्रांसफर करके आप छोड़ सकते हैं. 2011 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस BD 76,000. 6,000. Because as per the question, it has been said yes for the first 3 years. So okay students, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? Doubts, students? Have you taken the screenshot? No, sir. ओके. और किसी को भी कोई डाउट है इसमें पूछ लो. नेट नहीं है, हम अपने मोबाइल के कनेक्शन से चला रहे हैं. हो गया? समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये. Sometimes rate of depreciation would be given by original cost method. Okay. Like that कि original cost minus scrap value divided by lifetime. If the rate of percentage of depreciation is given, so you are supposed to charge accordingly. Now every year, suppose that 8% depreciation you need to charge. So 1 lakh into 8% will be 8,000 every year. Got it? If it is given estimated like scrap value, it will be calculated as I have shown. Okay. So one thing more I would like to say you all people, because you will be solving the next question or more and more questions, so you will be getting a different names for the same word. Okay, so you will get confused. The scrap value, you know what is the scrap value? Scrap value is the value which we can realize after expiry of the life of the assets. Okay, so scrap value is also known as fetch up value, FATCH, fetch up value या रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं इसको. ठीक है. और एक होता है ब्रेकअप वैल्यू. सो देयर आर 4 नेम्स: स्क्रैप वैल्यू, fetch up value, residual value and breakup value. So these are the 4 alternative names for the scrap value. Okay, so you all can note or you will be getting in different questions, so automatically you will understand. Okay, so today this is clear कि how to prepare the machine account or assets account. Suppose that in place of machine, if you have purchased furniture, you will put your furniture account, and to bank account by depreciation, balance CD, BD every year we will be doing like that. Okay.
सो अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो बेटा आप लोगों को क्लियर है सारा? Yes, sir. To erase the last means third year solution, and you are supposed to write a note in the same question, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है या लिखा है वहीं पे हैशटैग बनाकर या स्टार बनाकर आप लिख लो। थोड़ा बहुत मैं चेंज करवा रहा हूँ क्वेश्चन में, उसके आधार पे हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम जो चेंज कराएंगे उसमें हम सेलिंग इंफॉर्मेशन देंगे कि इस मशीन को सेल किया गया है। तो जब किसी एसेट को सेल किया जाता है तो हम मशीन अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। ओके, सो राइट अ नोट एवरीवन, you all are also supposed to write because I will not be writing on the board. You should write. Okay, मैं लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आवाज ना ट्रेवल कर रहा हूँ प्रॉपर। लिखिए, इसी क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर लेना आगे, ठीक है? स्टार बना के क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? On 1st October 2010, the machine was sold for rupees 50,000. That's it. अब आपको करना क्या है कि सेम क्वेश्चन है उसमें मैंने ये लाइन ऐड करवा दिया। आपको लिखना है कि on 1st October 2010 the machinery was sold for rupees 50,000. Okay, so I'm going to continue and you have to draw again with format, and first 2 years the solution would be same because we are selling it on 1st October 2010 and up to 31st March 2010 the solution would be same. Yani first year you will purchase to bank account 1 lakh, by depreciation 8,000, then again balance CD, then balance BD, then again by depreciation and balance CD, and you will transfer here to balance BD. Okay, next. So after that I'll be selling because in the third year, in the mid of the third year, you was selling the assets, na? So how to pass the entries? So let me confirm कि they all are. Yes, beta, you all have written this statement. आप लोगों ने लिख लिया या स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Okay, so this line would be added, ठीक है? And for the first 2 your solution would be same. You can draw the format or you can draw the new format for the third year only because I am not going to post here for the first and second year. I will be solving only for the third year, including thing. Okay. I'm extending after 2 years because the mid of the third year you are selling it. Okay, so balance CD and we will write here 2010 April 1st to balance BD brought down how much 84,000. So देखो करना क्या है, जनरली जब तक मशीन हमारे पास रहती है तब तक हम एवरी ईयर के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना? इस मशीन को
1 अक्टूबर 2010 में ही सेल कर दिया गया, जबकि क्लोजिंग डेट क्या आता 2011 31 मार्च। सो 11 यानी क्लोजिंग डेट से पहले ही सेल कर दिया गया, तो 11 पे अब हमको एंट्री करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मशीन हमारे पास रहेगा ही नहीं, मशीन खत्म हो जाएगी। जब तक मशीन रहेगा तभी तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, सो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे 2010 जब सेल कर रहे हैं अक्टूबर 1, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जिस भी एसेट को हम सेल कर रहे हैं उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर दैट करेंट अकाउंटिंग पीरियड, कि कितने मंथ या कितने दिन हमने यूज किया। सो देखो 1 अप्रैल को आपके पास था 2010 में मशीन और आप सेल कर रहे हो 2010 में अक्टूबर में 1 को। सो आप बताओ कि कितने मंथ यूज किया, how many months did you use from April to October? अच्छे से कैलकुलेट करो। 6 months, very good, because April the May, June, July, August, September, but in the 1 October you are selling, तो अक्टूबर में आपने यूज नहीं किया, तो 6 मंथ आपने यूज किया। तो 6 मंथ जब आपने इस मशीन को यूज किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी हुआ होगा, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ दिखाएंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप बताओ कि जब 1 ईयर का 8000 आ रहा है तो 6 मंथ का कितना आएगा 4000 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है। ओके, सो 4000। अब सेल कितने में किया बाय बैंक, देखो परचेस करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, बट सेल करेंगे तो बाय बैंक, ऑब्वियसली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो बाय हाउ मच यू आर सेलिंग इट 50,000, है ना। सो अब बताओ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपकी ये मशीन की अप्रैल को कितने की 84,000 की, राइट, यहाँ पे लिखा है ना 84,000 की थी 1 अप्रैल को, और आपने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 4000 चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 1 अक्टूबर को उस मशीन की कॉस्ट आपके लिए कितनी हुई 80,000 ना, ऑब्वियसली कि 84 का 1 अप्रैल को था और 6 मंथ यूज किया, तो यूज करने से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो कितना डिक्रीज होगा 4000 डिक्रीज होगा, तो कितना हुआ 80,000। इट मींस कि अगर हम 80,000 का उस मशीन को सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और उससे ज्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम पे करेंगे तो लॉस होगा। तो हमें कितने का सेल करना चाहिए था 80,000 का, बट हमने सेल कितने का किया 50,000 का, तो कितने का लॉस हो रहा है 30,000 का, राइट। समझ में आ गया। सो देखो, तो यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, ठीक है। अब आप टोटल कर दोगे, मशीन है नहीं तो बैलेंस बचेगा भी नहीं। बैलेंस तब होता है जब मशीन आपके पास बची होती है या पूरा का पूरा मशीन आपने सेल कर दिया। सो दोनों साइड टोटल करेंगे तो 84,000 ही आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर मुझे समझ नहीं आया। कहां से समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ यस सर, डेप्रिसिएशन 4,000 कैसे चार्ज हुआ। हाँ बेटा, आप देखो आपने फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, यहाँ देखो 8,000। यस सर। कितने दिन का किया है 12 मंथ्स का। यस सर। सेकेंड ईयर में 12 मंथ्स का 8,000 किया है। हाँ सर। थर्ड ईयर में आपने अप्रैल 1 से लेकर यूज कितने दिन किया 1 अक्टूबर तक, तो आप फिंगर्स पे काउंट करो कितने मंथ्स आपने उस मशीन को यूज किया इन सेलिंग ईयर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ओनली, बिकॉज ऑन 1 अक्टूबर यू आर सेलिंग। 1 अक्टूबर से मशीन चली गई,
यानी अक्टूबर में हमने यूज नहीं किया। व्हाट इट, तो 6 मंथ यूज किया, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा मैं दिखा दे रहा हूं। मैं ऊपर का यहां में इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे मैं यहां वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है। तो मशीन की कीमत ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 लाख है, उससे नहीं मतलब है। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 8000 है, और आपको 6 मंथ का पता करना है। तो 6 मंथ का कैलकुलेट करोगी तो कितना आएगा, 4000। तो कॉमन सी Yes, बात है, sir. छोटा सा सिंपल सा है कि 1 साल का 8000 आ रहा है, तो 6 महीने का 6 मंथ का 4000 आएगा, राइट। तो 4000 रुपए डेप्रिसिएशन ये Yes. आपने दिखा दी है। आप बताओ कि हम लोग बैलेंस कैसे पता करते हैं मशीन का, जो अप्रैल को जो वैल्यू होती है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके पता करते हैं। तो 1 अप्रैल तक Yes, की sir. जो बैलेंस थी 84 थी पूरे मशीन की, 6 मंथ हमने यूज किया तो 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन हुआ 4000। सो 6 मंथ बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 84,000 माइनस 4000 तो होगी 80,000। आपकी मशीन की कीमत कितनी बची, 80,000, 80,000 रुपए बचा। और आप उसे सेल कितने में कर रहे हैं, 50,000 में। सो 50,000 में अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा 30,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। गॉट इट। Yes, sir. और किसी को कोई कंफ्यूजन, आप लोग बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मैं इसको अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट बना लो। ठीक है, फॉर प्रॉफिट और लॉस और सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला स्टेप आप कैलकुलेट करते हो कि डेप्रिसिएशन अप टू सेल इन करेंट पीरियड, ठीक है। करेंट पीरियड मींस सेलिंग ईयर जिसमें आप सेल कर रहे हो, पहले उसके डेट का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करो। हाउ विल यू कैलकुलेट, यू नो, देन आफ्टर कॉस्ट अप टू सेल, कैसे निकालेंगे कॉस्ट अप टू सेल, सो बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन अप टू सेल। बुक वैल्यू जो रहेगा वो कब तक का रहेगा, ऑन बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर तुम्हारा 1 अप्रैल हो सकता है या 1 जनवरी हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में हो। सो 1 अप्रैल को जो वैल्यू होगी उसमें से डेप्रिसिएशन अप टू सेल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट अप टू सेल, ठीक है। जब कॉस्ट अप टू सेल आ गया तो आप इसे क्या करेंगे, कंपेयर with selling price to cost up to sale, ठीक है।
यानी कंपेयर किसको करना है, कितने में सेल किया और कितना उसका कॉस्ट प्राइस है। सो इफ कॉस्ट इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो क्या होगा, लॉस आएगा। और इफ कॉस्ट इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो गेन होगा, गेन या प्रॉफिट। ठीक है, सब हमने लिया था। कॉस्ट अप टू सेल कैसे होगा, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन अप टू सेल, जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया। बुक वैल्यू कब का, ऑन बिगनिंग ऑफ ईयर, मींस उस ईयर में जैसे 1 अप्रैल को जैसे 84,000 था, हमने पहले क्या किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में, कितना आया था 4,000। ठीक, फिर बुक वैल्यू कितनी थी, 84,000, फिर डेप्रिसिएशन कितना था 4,000, तो कॉस्ट कितना बचा हमारा 80,000। अब कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर हमारा कॉस्ट है 80,000 अगर रख लिया और सेलिंग प्राइस 50,000 लिख दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या है, कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हमें क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है ना 30,000 का। Yes, sir. क्या आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स, तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, very good. So you all have taken a screenshot. Now I am going to end the class. Is there any query? No, sir. Okay, beta. Now you will do practice from the textbook. Thanks, You sir. all are supposed to do practice. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, beta. Welcome, welcome. Just wait. Just I am taking the attendance.